سکتا ہے جدھر جدھر جن ایریاز میں کیسز بڑھتے ہیں ہمیں پھر سے ان کو لاک ڈاؤن کرنا پڑے. اگر ہم نے مثلاً دیکھا کہ کہیں فیکٹری کے اندر کیسز بڑھ گئے ہیں ایک دم, تو فیکٹری کو بند کرنا پڑے گا. کوئی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. ہمارے پاس اتنی نہ پولیس ہے نہ اتنے جیل ہیں, ہم زبردستی نہیں کر سکتے. تو جب ہم پبلک ٹرانسپورٹ بند کرتے ہیں تو ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم ایک غریب کی زندگی مشکل میں ڈال رہے ہیں. اس لیے میں پھر سے سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کھول دیں. وزیر اعظم پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کے خواہش مند. جانتے ہیں لاک ڈاؤن کھولنے سے کورونا مزید پھیلے گا. 15 کروڑ پاکستانی صورتحال سے متاثر. 2.5 کروڑ کے پاس متبادل روزگار ہی نہیں. کاروبار نہ کھولا تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے. تمام فیصلے اتفاق رائے سے ہو رہے ہیں. وزیر اعظم کا اظہار خیال. پیر سے بے روزگاروں کے لیے نقد امداد کا اعلان. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو وہ ویکسین ہی نکلنے لگی, تو اس کا مطلب کہ کرونا وائرس کہیں جانے نہیں لگی. ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے. سارے ملک میں اس وقت جو لوگ متاثر ہیں لاک ڈاؤن سے وہ 15 کروڑ ہیں. میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ باقی لوگ تو اپنی شاید اکانومی کو بچا رہے ہوں, ہم تو اپنے لوگوں کو بھوک کے مرنے سے بچا رہے ہیں. پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کی منظوری. شاپنگ مالز بھی پیر سے اوپن. آٹو موبائل انڈسٹری ہفتے میں 7 دن, شو رومز 4 دن کام کر سکیں گے. SOPs پر عمل درآمد لازمی قرار. خیبر پختونخوا میں پیر سے ٹرانسپورٹ کھولنے کا اعلان. SOPs تیار, نوٹیفیکیشن جاری. پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کے مطابق کرائے میں کمی کی جائے گی. حجام کو 7 دن کام کی اجازت. بلوچستان میں گاڑیاں چلیں گی یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا. کورونا کیسز میں روزانہ اضافہ جاری. پبلک ٹرانسپورٹ نہیں کھول سکتے, سندھ کا صاف انکار. وزیر اعظم کے حکم کا احترام مگر عمل سے ملک اٹلی بننے کا خدشہ ہے. صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اویس شاہ کا رد عمل. ڈومیسٹک آپریشن ہم کل سے شروع کر رہے ہیں. PIA اپنی فلائٹس PIA اور سرین ایئر کراچی کے لیے, لاہور کے لیے, کوئٹہ کے لیے اور پشاور کے لیے کل سے دوبارہ شروع کر رہے ہیں. 20% فلائٹس ہم ابتدائی طور پہ شروع کر رہے ہیں, اور اس کے لیے جو ہم نے SOP بنایا ہے اس میں سوشل ڈسٹنس کے لیے 50% سیٹ ہوگی. ڈومیسٹک فلائٹ آپریشن آج سے بحال. ابتدائی طور پر 20% پروازیں چلیں گی. وزیر برائے ہوا بازی کی تصدیق. پہلی پرواز دن 1 بجے کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی. چین میں پھنسے پاکستانی طلباء کی واپسی کے لیے رعایتی قیمت پر ایئر ٹکٹس دینے کا اعلان. 18 مئی کو شیڈول پرواز کے لیے کرایہ 50,000 روپے مقرر. جو ماسک کا استعمال ہے اب ہم نے اس کو آپ کو پابند کر رہے ہیں اس کے لیے کہ پبلک پلیسز کے اندر یا ایسی جگہیں کہ جہاں پہ ہجوم ہے اور آپ کو جانا پڑے گا, اور سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھنے کے باوجود ہم اس بات کی پابندی اب لگا رہے ہیں اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں کہ ماسک اب پہننا ضروری ہے. گھر سے نکلنا ہے تو ماسک پہننا لازمی ہوگا. حکومت نے اعلان کر دیا. باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی تیاریاں. وائرس کے خلاف امریکی کمپنی کی دوا مؤثر ثابت. پاکستان بھی بنائے گا. 127 ممالک کو ایکسپورٹ کرے گا. ظفر مرزا. پنجاب میں 9ویں اور 11ویں کے طلباء پروموٹ. نوٹیفیکیشن جاری. 10ویں کے طالب علموں کے پرچے چیک ہونے کے بعد نتائج کا اعلان کیا جائے گا. 12ویں کے اسٹوڈنٹس 11ویں کے حاصل کردہ نمبر لے سکیں گے یا پھر 2021 میں امتحان دینے کا آپشن بھی لے سکتے ہیں. وزیر تعلیم مراد راز. پنجاب یونیورسٹی کے زیر انتظام BA BSc پارٹ 2 کے امتحانات 22 جولائی سے شروع ہوں گے. MA MSc BCom پارٹ 2 کے امتحانات کا 7 ستمبر سے آغاز. شیڈیول جاری.
कोरोना मजीद 33 जिंदगियां निकल गया। मुल्क भर में अब तक 803 अमवात, 37,218 शहरी मुतासिर। सिंध में 14,099, पंजाब में 13,914, खैबर पख्तूनख्वा में 5,423 और बलूचिस्तान में 2,310 मरीज। बुनियादी शरह सूद मजीद 1% कम, 9 से 8% की सतह पर आ गई। मार्च से अब तक मजमूई तौर पर 5.25% कमी। कोरोना के बायस माशी चैलेंजेस का सामना है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मुल्क की तरक्की कराची की तरक्की से वाबस्ता। माजी में सिंध को नजरअंदाज किया गया। कोरोना से आने वाली मुश्किलात का मुकम्मल इदराक। वफाकी हुकूमत मसाइल हल करने के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। वजीर आज़म इमरान खान की मुत्तहिदा वफ्द को यकीन दहानी। जाली अकाउंट्स केस में तोशाखाना रेफरेंस पर समाअत। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को तलब कर लिया। साबिक वजीर आज़म ने दोनों को गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां दी। 15% अदायगी जाली अकाउंट्स के जरिए की गई, नैब का मौक़िफ़। आले शरीफ और आले जरदारी करप्शन सिखाने के टीटी मास्टर्स। शहबाज शरीफ ने 23 जाली फ्रंट कंपनीज और टीटी के जरिए बीवी, बच्चों और खानदान को नवाजा। 17.5 अरब की ट्रांजैक्शंस की गई। वजीर इत्तलाआत पंजाब फैयाजुल हसन चौहान की तनकीद। पंजाब का कल्चर तब्दील, सियासत को करप्शन से पाक कर दिया। अवामी फलाह के मंसूबे जारी हैं। वजीर आला पुरअज़्म उस्मान बुस्तार से डेरा गाजी खान और तोसा के वफूद की मुलाकात। पीटीआई में शमूलियत का ऐलान। कोरोना से दुनिया भर में 3,06,000 से ज़ायद हलाकतें। अमरीका में मज़ीद 795, बरतानिया में 384, ब्राज़ील 274, मैक्सिको में 257 जान से गए। भारत में अब तक 2,753 मुहलिक वायरस की भेंट चढ़ गए। अमरीकी सदर रवां साल के आखिर तक कोरोना वैक्सीन की तैयारी के लिए पुरुम्मीद। अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। अगर चीन ने पहले वैक्सीन में कामयाबी हासिल कर ली तो उससे लेंगे, ट्रंप। कोरोना वायरस के मुतासरीन की इमदाद का मिशन। शाहिद आफरीदी ने मुशफिकुर रहीम का बैट $20,000 में खरीद लिया। बांग्लादेशी क्रिकेटर रकम मुस्तहिकीन में तकसीम करेंगे। और सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी, तुर्बत में पारा 43, मिट्टी और पडीदन में 42 दर्जे तक पहुंच गया। इस्लामाबाद, मरी और गिलगित बल्तिस्तान में रिमझिम। अनंतनाग, बारामूला में बादल बरसने की पेशगोई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कमिश्नर्स और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने मुश्तरका SOPs बनाए हैं। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद अब किराए में भी कमी की जाएगी। तो खैबर पख्तूनख्वा से यह खबर आ रही है कि यहाँ पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला हो चुका है। हुकूमत ने इस सिलसिले में बाकायदा बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस सफर के लिए SOPs क्या होंगे ये भी कमिश्नर्स और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने मुश्तरका तौर पर तय किया है। एक और खुशखबरी यह है कि पंजाब हुकूमत ने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की मंजूरी दे दी है। SOPs तैयार कर लिए गए हैं। इन SOPs के मुताबिक 2 सीट्स पर एक मुसाफिर बैठकर सफर करेगा। खांसी, नजला, जुकाम में मुब्तला मुसाफिर को हरगिज सफर की इजाजत नहीं होगी। बस में सवार होने और उतरने के लिए अलहदा दरवाजा इस्तेमाल होगा। एक दरवाजे वाली गाड़ी में मुसाफिर पहले उतरेंगे, फिर सवार होंगे। सफर मुकम्मल होने के बाद बस में जरासीम को स्प्रे किया जाएगा। तो पंजाब हुकूमत ने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की मंजूरी दे दी है और इस हवाले से SOPs भी तैयार किए गए हैं।
लॉक डाउन में मजीद नरमी, पंजाब हुकूमत ने शॉपिंग मॉल्स को खोलने का फैसला किया है। पीर से शॉपिंग मॉल्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को खोल दिया जाएगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पैदावारी यूनिट्स को भी काम की इजाजत होगी। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। वजीर सनत पंजाब ऐसा बता रहे हैं। तो पंजाब में जहां एक तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की मंजूरी दे दी गई है, वहीं साथ ही साथ पीर के रोज से शॉपिंग मॉल्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को खोल दिया जाएगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पैदावारी यूनिट्स को भी काम की इजाजत होगी। इनके लिए भी सख्त SOPs तैयार कर लिए गए हैं और इन SOPs पर अमल दरामद लाजमी होगा। वजीर सनत पंजाब ने ऐसा बताया है। उधर महकमा तालीम पंजाब ने तलबा को अगली क्लास में प्रमोट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 9वीं और 11वीं जमात के तलबा को प्रमोट किया गया। नोटिफिकेशन में ऐसा बताया गया है, जबकि 10वीं जमात के तलबा के नताइज का ऐलान पर्चे चेक होने के बाद किया जाएगा। 12वीं जमात के तलबा को 11वीं जमात के हासिल करदा नंबर मिलेंगे। 40% से कम इम्तिहानात में फेल होने वालों को पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। तो महकमा तालीम पंजाब ने तलबा को अगली क्लास में प्रमोट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 9वीं और 11वीं जमात के तलबा को प्रमोट किया गया है के नताइज का ऐलान पर्चे चेक होने के बाद किया जाएगा। 12वीं जमात के तलबा को 11वीं जमात के हासिल करदा नंबर मिलेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का ये कहना है कि इस साल तक वैक्सीन नहीं आने वाली, हमें कोरोना के साथ ही रहना होगा। लॉकडाउन से 15 करोड़ अफराद मुतासिर हुए। केसेस बढ़ने वाले इलाकों में लॉकडाउन और फैक्ट्री सील करना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट खोलने पर कुछ सूबों का इत्तेफाक नहीं, गरीब आदमी की नकलो हरकत के लिए ट्रांसपोर्ट खोलना पड़ेगी। बेरोजगार होने वालों को पीर से कैश दिया जाएगा। अगर हमने इसका इलाज करना है कोरोना वायरस का, तो अभी तक तो कोई इलाज नहीं है। वो तब इलाज आएगा जब एक वैक्सीन निकलेगी। वो उसके ऊपर रिसर्च हो रही है, लेकिन सब ये कह रहे हैं कि इस साल तक तो वो वैक्सीन ही निकलने लगी। तो अगर इस साल तक वैक्सीन नहीं निकलने लगी, तो इसका मतलब कि कोरोना वायरस कहीं जाने नहीं लगी। लॉकडाउन का क्या फ़ायदा है? लोग इकट्ठे हों तो उसमें वायरस तेज़ी से फैलती है। हमें इस वायरस के साथ रहना है। 2.5 करोड़ ऐसे लेबर है, काम करने वाले हैं, जो कि या दिन की कमाई के ऊपर गुजारा करते हैं, अपने घर वालों का पेट पालते हैं, या अपने हफ्ते की कमाई से करते हैं। ये वो 2.5 करोड़ लोग हैं, जबकि हमने सब कुछ बंद किया, ये घरों में चले गए। इस वक्त जो लोग मुतासर हैं लॉकडाउन से, वो 15 करोड़ हैं। और ये कितनी देर 12,000 रुपया एक ख़ानदान के लिए काफ़ी रहेगा। तो लिहाजा हमारी ये मजबूरी है, एहसास होते हुए कि आपके ऊपर क्या गुजर रही है और हमें डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। केसेस बढ़ने हैं। अभी 10 दफ़ा सोचता हूँ हर रोज़ वो सफ़ेद पोश लोग कैसे गुजारा कर रहे होंगे। अपनी मेडिकल कम्युनिटी से ही कहना चाहता हूँ कि बाकी लोग तो अपनी शायद इकॉनमी को बचा रहे हों, हम तो अपने लोगों को भूख के मरने से बचा रहे हैं। हमने जो भी स्टेप्स उठाए उसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हम प्रोजेक्शन से नीचे जा रहे हैं। बढ़ेंगे केसेस, ये हम मेंटली प्रिपेयर रहें। जो भी कारोबार खोलेगा उनके जो मालिक होता है उसके ऊपर हम जिम्मेदारी दे देंगे। ये शराइत है जिसके ऊपर चल के आपने अपनी फैक्ट्री खोलनी है या आपने अपनी दुकान खोलनी है, तो आपको ये कदम उठाने पड़ेंगे। तो हो सकता है जिन एरियाज़ में केसेस बढ़ते हैं, हमें फिर से उनको लॉकडाउन करना पड़े। अगर हमने मसलन देखा कि कहीं फैक्ट्री के अंदर केसेस बढ़ गए एकदम, तो फैक्ट्री को बंद करना पड़ेगा। कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। हमारे पास इतनी ना पुलिस है, ना इतने जेल हैं, हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। 1-2 सूबों के ये खदशात हैं कि अगर आप खोलेंगे ट्रांसपोर्ट तो ये वायरस फैल जाएगी। कोरोना वायरस में जो आज सबसे मुश्किल में है वो हमारा गरीब तबका है। कहीं भी जा सकते हैं अपनी गाड़ियों में, लेकिन एक गरीब आदमी, एक मज़दूर, वो तो जिसके पास गाड़ी नहीं है उसके लिए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करते हैं तो हम ये याद रखें कि हम एक गरीब की ज़िंदगी मुश्किल में डाल रहे हैं। इसलिए मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें। अगर अमेरिका जैसी जगह जिधर 2-2 हज़ार लोग दिन में मर रहे हैं, उन्होंने अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बंद की, हमने क्यों ये बंद करके रख दी है? प्राइम मिनिस्टर का जो रिलीफ फंड है, जो लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर बता देंगे कि जी मैं बेरोज़गार हुआ हूँ इस दौर के ऊपर, और उनको भी मैं अपने फंड से पीर से मंडे से कैश ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जिस तरह के एहसास प्रोग्राम के ज़रिए किए जा रहे हैं। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.